تو نواب صاحب نے ہمیں عزت دی ہے اور اپنے وطن کے اپنے خطے کے ایک بڑا خاندان اور صاحب حیثیت خاندان اپنے قوم کے بڑے ہیں، اپنے علاقے کے بڑے ہیں. تو میرے خیال میں 2013 کے بعد تو مجھے کم از کم یاد ہے کہ جب بھی کوئی پارلیمانی معاملات آئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ جمعیت کو سپورٹ دیا ہے. اور اب جب میں آج مستونگ میں ایک تعزیت کے لیے آ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ نواب صاحب نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میرے پاس چائے پی. تو ہم آئے اور چائے پی اور ان کی طرف سے جو محبت کی مٹھاس تھی اس میں، اس کی وجہ سے مجھے چائے میں چینی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی. اس مرتبہ مٹھاس بہت زیادہ تھا. تھوڑا سا یہ بتائیں، ہمارے پاس جو خبریں ہیں، آپ نے نواب صاحب کو جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کی دعوت دی ہے، کہاں تک اس میں صداقت ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نواب صاحب جہاندیدہ آدمی ہیں اور سیاست تو ان کے گھر کی لونڈی ہے. وہ ملک کی سیاست کو بھی جانتے ہیں، بلوچستان کی سیاست کو بھی جانتے ہیں اور بڑی گہری نظر ہے اس کو یہاں کی سیاست پہ. تو ظاہر ہے جی کہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے اور ہم تو خوش آمدید کہیں گے. سر اوورآل ملکی سیاست پر کیا کہیں گے؟ اور ریسنٹ آپ سے افغان وزیر خارجہ کی جو ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے جو ان کا ماتھا چوما ہے، بڑا عالمی میڈیا میں اس کے چرچے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہم افغانستان کے امارت اسلامیہ اور تحریک طالبان کے روز اول سے سیاسی طور پر حامی رہے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے نہیں جاتے کہ امریکہ طاقتور ہے اس نے کہہ دیا دہشت گرد تو پھر ہم بھی کہتے ہیں دہشت گرد. نہ میں مشرف ہوں نہ میں کسی امریکہ کا غلام ہوں. آزادانہ طور پر دنیا میں ہمارے لوگوں سے تعلقات ہیں، احترام کے تعلقات ہیں، اصول پر مبنی ہوتے ہیں. اور آپ خود اندازہ لگائیں، آج امریکہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے، لیکن افغانستان میں اگر وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر گوانٹانامو بے کا بھی حساب دینا ہوگا، پھر باگرام جیل کے عقوبت خانوں کا بھی حساب دینا ہوگا، پھر شبرغان جیل کے عقوبت خانوں کا بھی حساب دینا ہوگا، اور پھر یہ بھی حساب دینا ہوگا کہ اگر واقعی یہ دہشت گرد تھے. اور یہاں تک کہ جب طالبان کی حکومت کا سقوط ہوا تو امریکہ نے کہا کہ جنیوا انسانی حقوق کے جو قیدیوں کے بارے میں حقوق ہیں طالبان اس زمرے میں نہیں آتے. لیکن آج ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، کئی سالوں پر محیط مذاکرات. آج انہوں نے امارت اسلامیہ کو بھی تسلیم کیا. آج پاکستان میں وہ آئے ہیں تو وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے آئے ہیں. اور اگر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو ہر دم آئیں. اگر میرا ملک اس کا استقبال کر سکتا ہے تو فضل الرحمان بھی اپنے گھر میں اس کا استقبال کر سکتا ہے. تھوڑا سا ملکی لیول پر مولانا صاحب، آپ ظاہر ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے مولانا صاحب، آج تک آپ نے جتنے بھی کالز دیے ہیں پروٹیسٹ کے، اسلام آباد جائیں گے میرے خیال میں ابھی آپ کا ارادہ بھی ہے شاید، اس پروٹیسٹ کو ابھی تک آپ ناراض نہ ہو مس کال سمجھا جاتا ہے. ابھی تک آپ نے ٹف ٹائم نہیں دیا ہے تبدیلی سرکار کو. دیکھیے پورے ملک میں کارکنوں کی سطح پر تیاریاں شروع ہیں، رابطے شروع ہیں، اور بیچ میں ہمارے صوبے میں تو کچھ بلدیاتی الیکشن آ گئے اور باقی صوبوں میں بھی ہر پارٹی کے اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. انشاءاللہ میں ابھی کراچی جاؤں گا. ہماری جو مرکزی قیادت ہے وہاں پہ مولانا اویس نورانی صاحب وہ سندھ کی پی ڈی ایم کی قیادت کو بلائیں گے تاکہ 23 مارچ کے لیے ان مشاورت ہو سکے. اسی طرح میں بھی ایک ہفتے کے بعد اپنے صوبے میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہان کو بلاؤں گا. محمود خان جگزیر صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہان کو بلائیں گے. میاں شہباز شریف صاحب پنجاب میں اس طرح کی ایک میٹنگ کریں گے. چونکہ ہمارے پاس ابھی 1-2 مہینے ہیں اور اس میں جو مشاورت کی اجتماعی تیاریوں کی جو ضرورت ہے انشاءاللہ
उसको हम पूरा करेंगे। मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात हुए, जमात उलमा इस्लाम ने कितना सपोर्ट? मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस वक्त तहसीलों की सतह पर भी और यूनियन कौंसलों की सतह पर भी सबसे बड़ी जमात बन गई है, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब हालात जो है उसने जब वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में दांधी हुई थी। साहब, KPK में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होल्ड रहा, लेकिन अब जो बलदियाती इंतखाबात दिख रहे हैं तो बहुत सारे मार्कों में जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो जीत रही है। तो आप समझ रहे हैं कि जो आपका नज़रिया है डे वन पे जो आप कहते हैं उसकी जो है लोग ऊपर चल। जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत है, लेकिन जो क़ुव्वतें और नादीदा क़ुव्वतें जमीयत के सामने रुकावटें बनती हैं, और बस एक मजहबी लिबास हमारा है। हम उलमा की जमात भी हैं, हम दीन इस्लाम की और उम्मत मुस्लिमा की भी बात करते हैं, और पाकिस्तान में आइन की रूह से जो कुरान और सुन्नत का निज़ाम है उसकी बात करते हैं, तो समझते हैं कि जी अगर ये लोग ऊपर आ गए तो पता नहीं अमेरिका और मगरबी दुनिया क्या सोचेगी। तो जब अमेरिका और मगरबी दुनिया ने अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ सुलह कर ली, अब हम उनके लिए क्यों नाकाबिल कबूल होंगे? लिहाजा इस किस्म की सोच ख़त्म हो जानी चाहिए, और ये जो है कि हमने एक जमात को इसलिए कंट्रोल रखना है, उसको आगे नहीं जाने देना, ये सोच अब ख़त्म, शिकस्त खा चुकी है। अब रास्ते खोल दो, अब हमें आगे बढ़ने दो, हम पाकिस्तान को इनसे बेहतर चलाएंगे। हमें पाकिस्तान चलाना आता है जी, और हम दियानतदार लोग हैं। खुदा का फजल है कि एक वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम के मिन हैसुल जमात, उसके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की करप्शन की बातें नहीं हैं। हाँ, अब तो साबित हो गया कि करप्शन की बातें भी एक टूल के तौर पर और हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे कोई है या नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ें अगर मुल्क में रहेंगी तो मुल्क का कारोबार ठप हो जाएगा। सियासतदानों को बदनाम करना, उनकी तजलील करना, ये वतीरा अब ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना जो लोग सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस किस्म के प्रोपेगेंडा करते हैं वो सियासतदानों से 1000 दर्जे ज़्यादा करप्ट लोग हैं। सर, थोड़ा सा ये यहाँ बलूचिस्तान में इन हाउस तब्दीली आई, आप पार्टी के एक CM गए, दूसरे आए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट JUIF और आपका ज़ाती भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक मोकअप रहा है। आप क्या कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? आपने यहाँ पे बलूचिस्तान में बाप पार्टी को सपोर्ट किया। देखिए, अदम एतमाद ये तो हिज़्ब इख्तिलाफ का फ़र्ज़ होता है, उसकी ड्यूटीज़ में से होता है कि हमेशा अदम एतमाद अपोजिशन साइड से आता है। तो यहाँ तो उनके अपनी पार्टी ने अदम एतमाद किया। अब अगर मुफ्त में मेरी झोली में इतने ज़्यादा लोग आते हैं, मैं क्यों इनकार करूँगा? लेकिन चूँकि हम अपने रवैये पर कायम रहे कि हम इस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, फिर वही सारे अंडे एक ही टोकरी में दोबारा जमा हो गए, उससे भी ज़्यादा जमा हो गए। नवाज साहब, आज की मीटिंग हुई आपकी मौलाना साहब के साथ, क्या कहेंगे? जो बातें मौलाना साहब ने आपको कही कि यानी आज के मीटिंग में इतनी मिठास थी कि उसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं थी, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। मौलाना साहब, 2022 में आम इंतखाबात देख रहे हैं आप? 2022 में आम इंतखाबात देख रहे हैं आप? देखिए, कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ। मायूस हम नहीं हैं तुलुए सहर से, अब तुलुए सहर होगा इंशाल्लाह। और अब तो खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया कि ये जाली हुकूमत थी, और अब भी जाली हुकूमत है, और सूबे में भी जाली हुकूमत थी, और उनका पूरा वो अभी भी हमारे सूबे में माशाल्लाह फैज़ अपने बरक़ात के साथ मौजूद हैं। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। Thank you.
नवाब साहब ने हमें इज़्ज़त दी है और अपने वतन के, अपने ख़ित्ते के एक बड़ा ख़ानदान और साहिब हैसियत ख़ानदान, अपने कौम के बड़े हैं, अपने इलाके के बड़े हैं। तो मेरे ख़्याल में 2013 के बाद तो मुझे कम से कम याद है कि जब भी कोई पार्लिमानी मामलात आए हैं तो उन्होंने हमेशा जमीयत को सपोर्ट दिया है। और अब जब मैं आज मस्तूम में एक ताज़ियत के लिए आ रहा था तो मुझे बताया गया कि नवाब साहब ने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मेरे पास चाय पी। तो हम आए और चाय पी और उनकी तरफ से जो मोहब्बत की मिठास थी उसमें, उसकी वजह से मुझे चाय में चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं हुई। इस मरतबा मिठास बहुत ज़्यादा था। थोड़ा सा ये बताएं, हमारे पास जो खबरें, आपने नवाब साहब को जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत की दावत दी है, कहाँ तक इस पर सदाकत है? देखिए, बात यह है कि नवाब साहब जहांदीदा आदमी है और सियासत तो उनके घर की लोंडी है। वो मुल्क की सियासत को भी जानते हैं, बलूचिस्तान की सियासत को भी जानते हैं और बड़ी गहरी नज़र है उसको यहाँ की सियासत पे। तो ज़ाहिर है जी के फैसला तो उन्होंने करना है और हम तो खुशामदीद कहेंगे। सर, ओवरऑल मुल्क की सियासत पर क्या कहेंगे? और रिसेंट आपसे अफगान वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात हुई है तो आपने जो उनका माथा चूमा है, बड़ा आलमी मीडिया में उसके चर्चे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम अफ़गानिस्तान के अमारत इस्लामिया और तहरीक तालिबान के रोज़ अव्वल से सियासी तौर पर हामी रहे हैं। हम दुनिया के पीछे नहीं जाते कि अमेरिका ताकतवर है, उसने कह दिया दहशतगर्द, तो फिर हम भी कह दें दहशतगर्द। न मैं मुशर्रफ हूँ न मैं किसी अमेरिका का ग़ुलाम हूँ। आज़ादाना तौर पर दुनिया में हमारे लोगों से ताल्लुक़ात हैं, एहतराम के ताल्लुक़ात हैं, उसूल पर मबनी होते हैं। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आज अमेरिका कहता है कि इंसानी हुकूक के लिए कोई जोग्राफियाई हुदूद नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान में अगर वो इंसानी हुकूक की बात करते हैं तो फिर ग्वांटानामो बे का भी हिसाब देना होगा, फिर बागराम जेल के उक़ूबत खानों का भी हिसाब देना होगा, फिर शबरगान जेल के उक़ूबत खानों का भी हिसाब देना होगा, और फिर ये भी हिसाब देना होगा कि अगर वाकई ये दहशतगर्द थे। और यहाँ तक कि जब तालिबान की हुकूमत का सुकूत हुआ तो अमेरिका ने कहा कि जनेवा इंसानी हुकूक के जो कैदियों के बारे में हुकूक हैं, तालिबान उस ज़ुमरे में नहीं आते। लेकिन आज उनके साथ मुज़ाकरात भी किए, कई सालों पर मुहीत मुज़ाकरात। आज उन्होंने अमारत इस्लामिया को भी तस्लीम किया। आज पाकिस्तान में वो आए हैं तो वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए आए हैं। और अगर उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो हरदम आए। अगर मेरा मुल्क उसका इस्तकबाल कर सकता है तो फजल रहमान भी अपने घर में उसका इस्तकबाल कर सकता है। थोड़ा सा मुल्की लेवल पर मौलाना साहब, आप ज़ाहिर है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है मौलाना साहब, आज तक आपने जितने भी कॉल्स दिए हैं प्रोटेस्ट के, इस्लामाबाद जाएंगे मेरे ख्याल में अभी आपका इरादा भी है, इस प्रोटेस्ट को अभी तक आप नाराज़ न हो, मिस कॉल समझा जाता है। अभी तक आपने टफ टाइम नहीं दिया है तब्दीली सरकार को। देखिए, पूरे मुल्क में कारकुनों की सतह पर तैयारियां शुरू हैं, राब्ते शुरू हैं और बीच में हमारे सूबे में तो कुछ बल्दियाती इलेक्शन आ गए और बाकी सूबों में भी हर पार्टी के अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं। इंशाअल्लाह मैं अभी कराची जाऊंगा। हमारी जो मरकज़ी क़ियादत है वहाँ पे मौलाना ओवैस नूरानी साहब, वो सिंध की पीडीएम की क़ियादत को बुलाएंगे ताकि 23 मार्च के लिए उन मुशावरत हो सके। इसी तरह मैं भी एक हफ्ते के बाद अपने सूबे में पीडीएम की जमातों के सरबराहान को बुलाऊंगा। महमूद खान अजगज़ी साहब जो हैं वो बलूचिस्तान की पीडीएम की जमातों के सरबराहान को बुलाएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब में इस तरह की एक मीटिंग करेंगे। चूँकि हमारे पास अभी 1-2 महीने हैं और उसमें जो मुशावरत की इज्तिमाई तैयारियों की जो ज़रूरत है इंशाअल्लाह
उसको हम पूरा करेंगे। मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात हुए, जमात उलमा इस्लाम ने कितना सपोर्ट? मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस वक्त तहसीलों की सतह पर भी और यूनियन कौंसलों की सतह पर भी सबसे बड़ी जमात बन गई है, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब हालात जो है उसने जब वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में दांधी हुई थी। साहब, KPK में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होल्ड रहा, लेकिन अब जो बल्दियाती इंतखाबात दिख रहे हैं तो बहुत सारे मार्कों में जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो जीत रही है। तो आप समझ रहे हैं कि जो आपका नज़रिया है डे वन से जो आप कहते हैं उसकी जो है लोग ऊपर चल। जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत है, लेकिन जो क़ुव्वतें और नादीदा क़ुव्वतें जमीयत के सामने रुकावटें बनती हैं, और बस एक मजहबी लिबास हमारा है। हम उलमा की जमात भी हैं, हम दीन इस्लाम की और उम्मत मुस्लिमा की भी बात करते हैं, और पाकिस्तान में आइन की रूह से जो कुरान और सुन्नत का निज़ाम है उसकी बात करते हैं, तो समझते हैं कि जी अगर ये लोग ऊपर आ गए तो पता नहीं अमेरिका और मगरबी दुनिया क्या सोचेगी। तो जब अमेरिका और मगरबी दुनिया ने अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ सुलह कर ली, अब हम उनके लिए क्यों नाकाबिल कबूल होंगे? लिहाजा इस किस्म की सोच ख़त्म हो जानी चाहिए, और ये जो है कि हमने एक जमात को इसलिए कंट्रोल रखना है, उसको आगे नहीं जाने देना, ये सोच अब ख़त्म, शिकस्त खा चुकी है। अब रास्ते खोल दो, अब हमें आगे बढ़ने दो, हम पाकिस्तान को इनसे बेहतर चलाएंगे। हमें पाकिस्तान चलाना आता है जी, और हम दियानतदार लोग हैं। खुदा का फजल है कि एक वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम के मिन हैसुल जमात, उसके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की करप्शन की बातें नहीं हैं। हाँ, अब तो साबित हो गया कि करप्शन की बातें भी एक टूल के तौर पर और हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे कोई है या नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ें अगर मुल्क में रहेंगी तो मुल्क का कारोबार ठप हो जाएगा। सियासतदानों को बदनाम करना, उनकी तजलील करना, ये वतीरा अब ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना जो लोग सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस किस्म के प्रोपेगेंडा करते हैं वो सियासतदानों से 1000 दर्जे ज़्यादा करप्ट लोग हैं। सर थोड़ा सा ये यहाँ बलूचिस्तान में इन हाउस तब्दीली आई, आप पार्टी के एक CM गए, दूसरे आए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट JUIF और आपका ज़ाती भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक मौक़िफ़ रहा है। आप क्या कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? आपने यहाँ पे बलूचिस्तान में बाप पार्टी को सपोर्ट किया। देखिए, अदम एतमाद ये तो हिज़्ब इख्तिलाफ का फ़र्ज़ होता है, उसकी ड्यूटीज़ में से होता है कि हमेशा अदम एतमाद अपोजिशन साइड से आता है। तो यहाँ तो उनके अपनी पार्टी ने अदम एतमाद किया। अब अगर मुफ्त में मेरी झोली में इतने ज़्यादा लोग आते हैं, मैं क्यों इनकार करूँगा? लेकिन चूँकि हम अपने रवैये पर कायम रहे कि हम इस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, फिर वही सारे अंडे एक ही टोकरी में दोबारा जमा हो गए, उससे भी ज़्यादा जमा हो गए। नवाज साहब, आज की मीटिंग हुई आपकी मौलाना साहब के साथ, क्या कहेंगे? जो बातें मौलाना साहब ने आपको कही कि यानी आज के मीटिंग में इतनी मिठास थी कि उसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं थी, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। मौलाना साहब, 2022 में आम इंतखाबात देख रहे हैं आप? 2022 में आम इंतखाबात देख रहे हैं आप? देखिए, कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ। मायूस हम नहीं हैं तुलुए सहर से, अब तुलुए सहर होगा इंशाल्लाह। और अब तो खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया कि ये जाली हुकूमत थी, और अब भी जाली हुकूमत है, और सूबे में भी जाली हुकूमत थी, और उसका पूरा वो अभी भी हमारे सूबे में माशाल्लाह फैज़ अपने बरक़ात के साथ मौजूद हैं। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। साहब ने हमें इज़्ज़त दी है, और अपने वतन के, अपने खित्ते के
एक बड़ा ख़ानदान और साहिब हैसियत ख़ानदान, अपने कौम के बड़े हैं, अपने इलाके के बड़े हैं। तो मेरे ख्याल में 2013 के बाद तो मुझे कम से कम याद है कि जब भी कोई पार्लिमानी मामलात आए हैं तो उन्होंने हमेशा जमीयत को सपोर्ट दिया है। और अब जब मैं आज मस्तूम में एक ताज़ियत के लिए आ रहा था तो मुझे बताया गया कि नवाब साहब ने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मेरे पास चाय पी। तो हम आए और चाय पी और उनकी तरफ से जो मोहब्बत की मिठास थी उसमें, उसकी वजह से मुझे चाय में चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं हुई। इस मरतबा मिठास बहुत ज़्यादा था। थोड़ा सा ये बताएं, हमारे पास जो खबरें हैं, आपने नवाब साहब को जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत की दावत दी है, कहाँ तक इसमें सदाकत है? देखिए, बात यह है कि नवाब साहब जहांदीदा आदमी हैं और सियासत तो उनके घर की लोंडी है। वो मुल्क की सियासत को भी जानते हैं, बलूचिस्तान की सियासत को भी जानते हैं और बड़ी गहरी नज़र है उसको यहाँ की सियासत पे। तो ज़ाहिर है जी के फैसला तो उन्होंने करना है और हम तो खुशामदीद कहेंगे। सर, ओवरऑल मुल्क की सियासत पर क्या कहेंगे? और रिसेंट आपसे अफगान वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात हुई है तो आपने जो उनका माथा चूमा है, बड़ा आलमी मीडिया में उसके चर्चे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम अफ़गानिस्तान के अमारत इस्लामिया और तहरीक तालिबान के रोज़ अव्वल से सियासी तौर पर हामी रहे हैं। हम दुनिया के पीछे नहीं जाते कि अमेरिका ताकतवर है, उसने कह दिया दहशतगर्द, तो फिर हम भी कहते हैं दहशतगर्द। न मैं मुशर्रफ हूँ न मैं किसी अमेरिका का ग़ुलाम हूँ। आज़ादाना तौर पर दुनिया में हमारे लोगों से ताल्लुक़ात हैं, एहतराम के ताल्लुक़ात हैं, उसूल पर मबनी होते हैं। और आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, आज अमेरिका कहता है कि इंसानी हुकूक़ के लिए कोई जोग्राफियाई हुदूद नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान में अगर वो इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं तो फिर ग्वांटानामो बे का भी हिसाब देना होगा, फिर बागराम जेल के उक़ूबत खानों का भी हिसाब देना होगा, फिर शबरगान जेल के उक़ूबत खानों का भी हिसाब देना होगा, और फिर ये भी हिसाब देना होगा कि अगर वाकई ये दहशतगर्द थे। और यहाँ तक कि जब तालिबान की हुकूमत का सुकूत हुआ तो अमेरिका ने कहा कि जनेवा इंसानी हुकूक़ के जो कैदियों के बारे में हुकूक़ हैं, तालिबान उस ज़ुमरे में नहीं आते। लेकिन आज उनके साथ मुज़ाकरात भी किए, कई सालों पर मुहीत मुज़ाकरात। आज उन्होंने अमारत इस्लामिया को भी तस्लीम किया। आज पाकिस्तान में वो आए हैं तो वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए आए हैं। और अगर उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो हरदम आए। अगर मेरा मुल्क उसका इस्तकबाल कर सकता है तो फजल रहमान भी अपने घर में उसका इस्तकबाल कर सकता है। थोड़ा सा मुल्की लेवल पर मौलाना साहब, आप ज़ाहिर है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है मौलाना साहब, आज तक आपने जितनी भी कॉल्स लिए हैं प्रोटेस्ट के, इस्लामाबाद जाएंगे मेरे ख्याल में, अभी आपका इरादा भी है शायद, इस प्रोटेस्ट को अभी तक आप नाराज़ न हो, मिस कॉल समझा जाता है। अभी तक आपने टफ टाइम नहीं दिया है तब्दीली सरकार को। देखिए, पूरे मुल्क में कारकुनों की सतह पर तैयारियां शुरू हैं, राब्ते शुरू हैं और बीच में हमारे सूबे में तो कुछ बल्दियाती इलेक्शन आ गए और बाकी सूबों में भी हर पार्टी के अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं। इंशाअल्लाह मैं अभी कराची जाऊंगा। हमारी जो मरकज़ी क़ियादत है वहाँ पे मौलाना ओवैस नूरानी साहब वो सिंध की पीडीएम की क़ियादत को बुलाएंगे ताकि 23 मार्च के लिए उन मुशावरत हो सके। इसी तरह मैं भी एक हफ्ते के बाद अपने सूबे में पीडीएम की जमातों के सरबराहान को बुलाऊंगा। महमूद खान अजगज़ी साहब जो हैं वो बलूचिस्तान की पीडीएम की जमातों के सरबराहान को बुलाएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ से पंजाब में इस तरह की एक मीटिंग करेंगे। चूँकि हमारे पास अभी 1-2 महीने हैं और उसमें जो मुशावरत की इज्तिमाई तैयारियों की जो ज़रूरत है इंशाअल्लाह उसको हम पूरा करेंगे। मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हुए, जमीयत उलमा इस्लाम ने कितना स्कोर?
मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस वक्त तहसीलों की सतह पर भी और यूनियन कौंसलों की सतह पर भी सबसे बड़ी जमात बन गई है। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब हालात जो है उसने जब वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में दांधी हुई थी। साहब KPK में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होल्ड रहा, लेकिन अब जो बल्दियाती इंतखाबात दिख रहे हैं तो बहुत सारे मार्गों में जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो जीत रही है। तो आप समझ रहे हैं कि जो आपका नज़रिया है डे वन से जो आप कहते हैं उसकी जो है लोग ऊपर चल। जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत है, लेकिन जो क़ुव्वतें और नादीदा क़ुव्वतें जमीयत के सामने रुकावटें बनती हैं और बस एक मजहबी लिबास हमारा है। हम उलमा की जमात भी हैं, हम दीन इस्लाम की और उम्मत मुस्लिमा की भी बात करते हैं और पाकिस्तान में आइन की रूह से जो कुरान और सुन्नत का निज़ाम है उसकी बात करते हैं तो समझते हैं कि जी अगर ये लोग ऊपर आ गए तो पता नहीं अमेरिका और मगरबी दुनिया क्या सोचेगी। तो जब अमेरिका और मगरबी दुनिया ने अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ सुलह कर ली, अब हम उनके लिए क्यों नाकाबिल कबूल होंगे। लिहाजा इस किस्म की सोच ख़त्म हो जानी चाहिए और ये जो है कि हमने एक जमात को इसलिए कंट्रोल रखना है, उसको आगे नहीं जाने देना, ये सोच अब ख़त्म, शिकस्त खा चुकी है। अब रास्ते खोल दो, अब हमें आगे बढ़ने दो, हम पाकिस्तान को इनसे बेहतर चलाएंगे। हमें पाकिस्तान चलाना आता है और हम दियानतदार लोग हैं। खुदा का फजल है कि एक वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम के मिन हैसुल जमात उसके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की करप्शन की बातें नहीं हैं। हाँ, अब तो साबित हो गया कि करप्शन की बातें भी एक टूल के तौर पर और हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे कोई है या नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ें अगर मुल्क में रहेंगी तो मुल्क का कारोबार ठप हो जाएगा। सियासतदानों को बदनाम करना, उनकी तजलील करना, ये वतीरा अब ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना जो लोग सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस किस्म के प्रोपेगेंडा करते हैं वो सियासतदानों से 1000 दर्जे ज़्यादा करप्ट लोग हैं। सर थोड़ा सा ये यहाँ बलूचिस्तान में इन हाउस तब्दीली आई, आप पार्टी के एक CM गए, दूसरे आए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये और आप पर कायम रहे कि हम इस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, फिर वही सारे अंडे एक ही टोकरी में दोबारा जमा हो गए, उससे भी ज़्यादा जमा हो गए। साहब आज की मीटिंग हुई आपकी मौलाना साहब के साथ, क्या कहेंगे? जो बातें मौलाना साहब ने आपको कही कि यानी आज के मीटिंग में इतनी मिठास थी कि उसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं थी, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। मौलाना साहब 2022 में हम इंतखाबात देख रहे हैं, 2022 में हम इंतखाबात देख रहे हैं। देखिए कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ। मायूस हम नहीं हैं तुलुए सहर से, अब तुलुए सहर होगा इंशाल्लाह। और अब तो खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया कि ये जाली हुकूमत थी और अब भी जाली हुकूमत है और सूबे में भी जाली हुकूमत थी और उसका पूरा वो अभी भी हमारे सूबे में माशाल्लाह फैज़ अपने बरक़ात के साथ मौजूद हैं। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।